Okay, good morning everyone. Is it visible? Online students? Someone can respond. Okay, so good, thank you. So in our last lecture, we have discussed the different types of access control. In that, we have a mandatory access control, discretionary access control, and third one is the role-based access control. Uh, Now, first discretionary access control. In that, we have seen the grant and revoke. First, you will grant the request and privileges according to that level, and then after you can revoke it. It means पहले ग्रांट दे दो, फिर आपको रिवर रोल बैक करना है, या फिर रोल बैक इट मीन्स वापस ले लेनी है ग्रांट, तो आप ले सकते हो. पहले परमिशन दो, फिर वापस ले लो. उस टाइप मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में था subject of the object clearance level, security levels. Based on their level, access will be granted. So that is the access control. आपका जो access, आपका जो level है, अगर आप, मैंने एग्जांपल दिया था, right now you are the students, if you clear the BTech and you are joining as a professor or teaching assistant or lab assistant, then your level will be up and few access will be granted to you, right? Next देखा था role based access control, not in a detail, but role based name suggests, meaning whatever role is assigned to you, according to that grant will be, access will be granted to you. So in any organization, first it will define your role. Based on your role, you will be granted. So again, for example, you are you are assigned the role of student, then few access will be granted to you, and if you are misusing that access, then it will be revoked. So role based में भी ग्रांट एंड रिवोक तो इंक्लूड हो गया, ग्रांट एंड रिवोक इंक्लूड होगा ही सब जगह. क्यों? क्योंकि एक्सेस को लिमिट करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, राइट? सो चेक करना है. इफ यू वांट अ मोर एक्सेस, if you want a more access, then your role or your level should be increased. Your role or level should be increased, otherwise you will not get the full access or partial access. Sometimes if you are searching on a Google some documents, if you find only one page is accessible, right? To access more pages you need a full access. It means आपको परचेस करना होता है या फिर रजिस्टर करना होता है, ऐसा कुछ होता है, राइट? सो दैट इज द रोल बेस्ड. आपका रोल क्या है? जनरली ये जर्नल्स में होता है, रिसर्च पेपर्स में होता है, स्लाइड्स में भी होता है, स्लाइड शेयर में भी होता है. कुछ स्लाइड्स ऐसी होती है उसमें ऐसा होता है, कुछ स्लाइड्स पेज ऐसे ही प्राइवेट होती है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, राइट? So based, that is known as the RBAC, role based access control, right? So this is role based. So role hierarchy in RBSC is natural way to organize roles or to reflect the organization lines of authority and responsibility. Authority and responsibility, as I told you, student, then a faculty, then HOD, then dean, then vice chancellor. So ये hierarchy के according उसको सब roles and responsibility मिलेगी, right? Now next one is the intrusion detection system, IDS. As you know, intrusion detection, it means someone is trying to access your data, that is known as the intruder. So in this intruder detection system, it monitors the network traffic. It will, as I told you, if two friends are sitting nearby, then one is sending that message, it will not directly go to the another friends. First it will be encrypted, then float onto a network, and after network we don't know which route it will select. For that you need to learn the computer network. Then through network it will reach to the friends. So it will observe the network traffic for suspicious activity and issue alerts.
when such activity is discovered, it means नेटवर्क ट्रैफिक वो ऑब्जर्व करेगा आईडीएस सिस्टम, उसमें अगर आपको कुछ सस्पिशियस लग रहा है या फिर एबनॉर्मल एक्टिविटीज लग रही है, then it will note it down and it will inform to the appropriate person like DBA or any other manager who will security manager, let's say, right? Generally what antivirus does, first antivirus will scan the entire system, that is your network traffic will be scanned. अगर उसमें कुछ malicious लग रहा है, वायरस जैसा लग रहा है, then antivirus will issue the notification कि इस ड्राइव में, इस फोल्डर में ये वायरस है, एक्शन लेता है, कुछ वो पूछता है, एक्शन लेना है, सो इट विल नोटिफाई यू. तो वो आप सपोज मैनेजर हो या फिर सिक्योरिटी मैनेजर या फिर डीबीए हो, व्हाटएवर, सो आप क्या करते हो, एक्शन लेते हो, राइट? सो सिमिलर वे इन आईडीएस same thing will be happen. So scans the networks or a system for a harmful activity or policy breaching. The purpose of IDS in database is to detect transaction that access data without permission. It means unauthorized person को वो access करने की permission नहीं देगा तो उसको detect करेगा, right? So IDS will do the IDS will try to resolve the malicious or suspicious activity amongst the networks, जो भी है वो, right? उसमें दो टाइप्स है IDS में. First one is the NIDS and second one is the HIDS. NIDS it means network intrusion detection system and HIDS it means host intrusion detection system. So name suggests its meaning. Network intrusion detection, network it means multiple nodes. So from network it will identify the suspicious or malicious things that is in a network. So NIDS are set up at a planned point within the network to examine traffic from all devices on the network, like control room, जहां से सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है. तो उसी तरह नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन में NIDS में एक पॉइंट होता है, वहां पे वो सेटअप करते हैं और वहां से बैठे ही सारी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन स्कैन करके ऑब्जर्व करेंगे. दैट इज NIDS. So it performs an observation of passing traffic on the entire subnet and matches the traffic that is passed on the subnet to the collection of non-attacks. Subnet it means part of the network, that is known as the subnet cluster, or part of group, that is known as the subnet. Once the attack is identified or abnormal behavior, or you can say that malicious activity, suspicious attacks or activities going on, then alert can be sent to the administrator, which I told you, right? So this is NIDS. Now host it means one person or you, one system, that is host intrusion detection system. So it run on independent host or device on a network, independent, पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर वो रन होगा. काम तो वही है IDS का, क्या इंट्रूडर को फाइंड करना, malicious activity, suspicious attacks जो भी है उसको फाइंड करना. So HIDS monitor the incoming and outgoing packets from the device only and will alert the administrator if any suspicious or malicious activity is going on. Packet it means your entire message will not directly send to the receiver. Your entire message will be divided in some part, and that is known as one packet. For example, hello, good morning TC2. This is our entire message which you are sending in a WhatsApp. It will not directly send to your friend. It will be divided. वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में पूरा आएगा, ठीक है. हेलो या फिर एच, उसका एल्गोरिदम है, डिप में नहीं जाते. हेलो, गुड मॉर्निंग TC1 इतने पैकेट्स में डिवाइड किया. एक पैकेट फ्लोट किया नेटवर्क में, दूसरा पैकेट फ्लोट किया, तीसरा पैकेट फ्लोट किया, ऐसे नेटवर्क में पूरा फ्लोट हो जाता है. फिर एट द एंड ऑल द पैकेट्स, उसमें नंबरिंग दिया होता है 1 2 3 4, वो फिर गैदर होते हैं और उसको सामने वालों को मिल जाता है. सो पैकेट इज वन small chunk of the message, right?
it takes a snapshot of existing system files and compares it with the previous snapshot. Snapshot लेने का मतलब क्या? आप इस स्लाइड का स्नैपशॉट ले रहे हो तो इसमें कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स है, एरो से 3 पॉइंट्स है, ठीक है। लेकिन मैं अपलोड कर रहा हूँ ई कंटेंट में, उसमें 5 पॉइंट है, तो आप तो बोलेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट 2 पॉइंट से वो एक्स्ट्रा है। इज इट सो? तो फिर क्यों डायरेक्टली बोल दिया लास्ट 2 पॉइंट से एक्स्ट्रा है? मैंने कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई? यू विल कंपेयर ऑल द पॉइंट्स, राइट? मे बी आई विल ऐड first point, I will add at middle, I will add it at end. So you will compare line by line or points. So from that you can identify. So that is the scanning, nothing else. So snapshot लिया है तब पता चलेगा ना। अभी सब आइडियली सो रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है? सोचो, just imagine. I will not do this one. I taught everything, all the units. I am also uploading all the units PPT. यहाँ पे मैंने 10 स्लाइड पढ़ाई है, अपलोड में 3 ही स्लाइड कर रहा हूं, तो किसको पता चलेगा? कुछ लोग, ओनली 5 to 10 पर्सन। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया है, इसलिए। समझ में आ रहा है? अगर स्नैपशॉट्स होता या फिर आपने बुक्स में सिर्फ टॉपिक लिखे तो भी आप बताएंगे सर आपने क्लास में आईडीएस, एचडीएस, एचआईडीएस टॉपिक पढ़ाया है लेकिन पीपीटी में नहीं है, सर प्लीज प्रोवाइड मी द पीपीटी ऑफ दिस, बोल सकते हो। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं है, देन समझ में आ रहा है? इसलिए बोल रहे हैं हम। कुछ बहुत सारी चीज ऐसी है जो मुझे आपको बतानी है, लेकिन ड्यू टू सम लिमिटेशन आई कैन नॉट एडवाइज यू। मैं इनडायरेक्टली आपको बोलूं तो आप सब लोगों को बहुत सुधरने की जरूरत है, इन टर्म्स ऑफ ऑल, in terms of academic, in terms of person, in terms of discipline, everything. I'm not hungry for what I can say, any, forget it. Next, HIDS complete. Next, SQL injection. What is injection? Injection. To inject something. आप वैक्सीन लगाने जा रहे हो कोरोना की, तो क्या करते हैं? इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। सो ये डेटाबेस में क्या इंजेक्शन डेटाबेस खाएगा कोरोना की वैक्सीन लेगा? 1 2 नहीं, डोज नहीं लेगा कोरोना की। एसक्यूएल इंजेक्शन इट मींस इंट्रूडर और attacker will inject something with SQL query and it will harm your system. That is one type of attack. मैं SQL query लिख रहा हूं, select star from account, ठीक है, ये मैंने लिखी, इंट्रूडर ने क्या किया? उसको फेच किया, उस क्वेरी में कुछ ऐड कर दिया और डेटाबेस पे ऊपर फायर हो गया। जब वो क्वेरी फायर होगी तो वो डेटाबेस का टेबल हैक हो गया होगा, तब जाके हमें पता चलता है कि ये हैक हो गया है। लेकिन आप सोचेंगे मैंने तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट ही डाला था, ये कहां से आ गया? दैट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, नथिंग एल्स। क्लियर? लेट्स सी। It is the one of the most common threats to a database system which injects something to destroy your system, right? So web programs and web application and web programs that access the database can send commands and data to the database as well as display the data retrieved from the database through the web browser that we are doing, right? जो भी कंटेंट हमारा है वो डेटाबेस में सेव्ड ही है, पासवर्ड और एवरीथिंग। आप बोलेंगे कि सर हमें तो नहीं दिख रहा है, सिक्योर लग रहा है। नहीं, कहीं पे भी तो सर्वर पे पासवर्ड सेव होगा तो सही ना, तब भी आप ऑथेंटिकेशन हो रहा है और आप जीमेल एक्सेस कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? अदरवाइज नहीं कर पा रहे हो।
राजकोट के सर्वर में नहीं है, मारवाड़ी के सर्वर में नहीं है, लेकिन गूगल जीमेल के सर्वर में, गूगल के सर्वर में तो होगा ही। समझ में आ रहा है? सो वेब ब्राउजर, वेब एप्लीकेशन से हम कुछ भी एक्सेस करें, डेटाबेस है। अगर आपको याद है मेरी बात है तो इस पॉइंट हमने ऑलरेडी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर डिस्कस कर लिया था। क्या? डेटाबेस इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यू विल फेस एवरीवेयर, प्रोजेक्ट्स में, कोई भी हायर लेवल लैंग्वेज में, या फिर कोई भी एप्लीकेशन में, कोई भी वेब ब्राउजिंग में, कहीं पे भी, क्योंकि आपको स्टोर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यही बोलना चाहता है क्या कि आप कहीं पे डेटाबेस स्टोर करेंगे, बस एक्सेस तो करेंगे ना, उसके साथ हम जुगाड़ कर लेंगे, मींस अटैक कर लेंगे। विदाउट दैट यू कैन नॉट लाइव। आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, डेटाबेस के बिना। समझ में आ रहा है? जैसे आपने व्हाट्सएप एक्सेस किया, आप कितने दिन व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाएंगे? आज नहीं, काल नहीं, परसों। जैसे ही आप व्हाट्सएप एक्सेस करना चाहेंगे, तब डेटाबेस में आपके फ्रेंड का नंबर और मैसेज जो भी सेव्ड है, उसके ऊपर मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन लगाया है। जैसे ही आप एक्सेस करेंगे, फायर करेंगे, जो भी करेंगे, तुरंत ही वो उठा लेगा डेटाबेस। समझ में आ रहा है? तो इसलिए डेटाबेस इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो। So it is the one of the most common web hacking techniques, SQL injection is, and it is the placement of malicious code in SQL statement via web page input. As I told you, database is everywhere, so SQL queries आप सब जगह अप्लाई करेंगे ही, ठीक है? उसके साथ एक सेंटेंस वो ऐड कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, तो दैट इज एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, आप उसमें कुछ ऐड कर देंगे क्वेरी में, वेयर करके, तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, वो अटैक हो गया, वन टाइप ऑफ। सो इन एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, द अटैकर इंजेक्ट्स अ स्ट्रिंग इनपुट थ्रू द एप्लीकेशन which changes or manipulates the SQL statement to the attacker's advantage. Attackers को जो पर्पस से डेटाबेस एक्सेस करना है, वो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल इंजेक्ट स्ट्रिंग, वेयर क्लोज में एंड करके कुछ भी। समझ में आ रहा है? सो इट विल हार्म द डेटाबेस इन सच अ मैनर अनऑथोराइज्ड मैनिपुलेशन विल बी डन। डेटाबेस में अनऑथोराइज्ड मैनिपुलेशन हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट डाला, उसने कुछ ऐड कर दिया, तो उसको सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको आउटपुट ऐसा ही आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट का ही आएगा, उसने वेयर करके कुछ डाल दिया, वेयर सिटी इज इक्वल टू राजकोट, उसके पास, अटैकर के पास आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एसक्यूएल मैनिपुलेशन, attack, name suggests its meaning. Again, manipulation, it means to modify something, manipulate something. So by using SQL command, it will manipulate something. जो भी डेटा है वो मैनिपुलेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ सिलेक्ट स्टार कर रहे हो, या फिर इंसर्ट अपडेट वट एवर यू आर डूइंग, उसके अंदर वो कुछ क्वेरी एसक्यूएल इंजेक्ट कर देगा, तो आपका डेटा चेंज हो जाएगा। For example, by adding condition to the where clause of a query, or by expanding a query with additional query components using set operations such as union, intersect और minus, ऐसा कमांड्स आप ऐड करो तो हो जाएगा। जैसे आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट डाला, मैं वेयर कंडीशन में ऐसी कंडीशन डाल रहा हूं, वेयर 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 यूजर नेम इज इक्वल्स टू दिस, एंड सब क्वेरी कुछ डाल रहा हूं कि उसमें मुझे पासवर्ड आपका मिल जाए, हो गया, आपको तो कुछ पता भी नहीं चला। या फिर यूनियन करके, इन सेट ऑपरेटर्स यूज करके दूसरी क्वेरी लगा दूं, तो दिस इज द एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल मैनिपुलेशन। सेकंड, कोड इंजेक्शन, उसमें सिर्फ कमांड में ऐड किया, यहाँ पूरा कोड ऐड कर देंगे, दैट इज कोड इंजेक्शन। सो दिस टाइप ऑफ अटैक अटेम्प्ट्स टू ऐड एडिशनल एसक्यूएल स्टेटमेंट or command to existing SQL by exploiting a computer bug which is caused by processing invalid data.
तो यहाँ पे आप पूरा कोड और कमांड लिस्ट ऐड कर देंगे. एंड फंक्शनल कॉल इंजेक्शन, तो फंक्शन कॉल जब होगा तब आप इंजेक्ट कर देंगे, दैट इज फंक्शनल कॉल इंजेक्शन. Now risk associated with SQL injection. There are 4 points which are associated with SQL injection risk. First one is the database fingerprinting, denial of service, bypassing authentication, identifying injectable parameters. So database fingerprinting, it means it can determine the types of database being used in the backend so that he can or she can use the specific database attacks. तो फर्स्ट वो आइडेंटिफाई करेगा कि बैकएंड में कौन सा डेटाबेस यूज किया है, वो पता चल जाएगा. सो अटैकर को पता चलेगा कि ये डेटाबेस बैकएंड में यूज हुआ है, सपोज MySQL यूज हुआ है, तो उसको मैं इस क्वेरी से अटैक कर सकता हूं. सो कॉरेस्पॉन्डिंग commands, corresponding queries will be fired on particular database. So identifying the backend, that is known as the database fingerprinting. Now denial of service. In this, attacker will flood this server with request. Flood this server with request, it means इतनी सारी रिक्वेस्ट अटैकर भेज देगा, इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज देगा सर्वर को, सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा कौन सी रिक्वेस्ट में पहले लूं. फिर denying service to valid user or the attacker can delete some data. उसका मैं बेस्ट एग्जांपल दे दूं. राइट नाउ ऑल ऑफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू मी, सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो. अब मैं सर्वर कंफ्यूज हो गया, किसको आंसर पहले दूं, किसका क्या क्वेश्चन था वो. उसमें से कोई एक बंदा अटैकर साइलेंटली घुस जाएगा और डेटा चोरी करके चला जाएगा, क्योंकि मैं आपके साथ आंसर देने में बिजी हूं. समझ में आ रहा है? जैसे कि ये ऑफलाइन क्लासेस में जय मुझे बुला रहा है और हर्षिल मुझे बुला रहा है, वो क्वेश्चन सारे एक साथ में पूछ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ और उसका आंसर देने में बिजी हूँ और बाकी सबको डिनाई कर रहा हूँ. उस प्रोसेस के दौरान यहां से लिप्सा क्लास के बाद विदाउट परमिशन चली जाती है, उसको बंक मारना था. समझ में आ रहा है? सो ऐसा ही होता है कि फ्लडिंग 1 2 3 रिक्वेस्ट में फ्लडिंग पूरा रिक्वेस्ट से भर देना सर्वर. सो सर्वर कंफ्यूज, सर्वर वो रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई करे तब तक तो वो अटैकर डेटा डिलीट करके चला भी जाएगा. तो मैं जो अभी जो एग्जांपल दिया कि मैं हर्षिल और जय का आंसर दूं, तब तक लिप्सा क्लास छोड़ के चली भी जाएगी, वाटर ड्रिंक करके फिर वापस आके बैठ भी जाएगी. सिमिलर वे डेटा डिलीट भी कर देगा, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस. बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन दैट यू नो, उसको बाईपास कर दो, तो क्रेडेंशियल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दैट इज बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन. Identifying injectable parameters, so in this attacker will gather the important information about type and structure of the backend database and of different web application as having a different structure, different backend database. So पहले वो identify करेगा, and then this attack is made possible by the fact that the default error page written by application servers is often overly descriptive. Error page दिखाएगा और वो backend में अपना काम कर लेगा attacker. So this is the identifying injectable parameters. Executing remote command. Executing remote command, it means remote procedure call होता है, RMI होता है, remote method invocation. उसमें क्या होता है, आपने सुना होगा फ्रॉड. कैसा? क्योंकि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, आप सिर्फ पीसी के ऊपर बैठते हो, स्क्रीन में आपका सिर्फ फेस ही दिख रहा है, कैमरा ऑन रखना पड़ता है, लेकिन आपकी एग्जाम कोई और दे रहा होता है. ऐसा फ्रॉड आपने सुना है, ठीक है? तो वो यही हुआ, एग्जीक्यूटिंग रिमोट कमांड. रिमोटली आप कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करवा देंगे और डेटा हैक कर लेंगे. Right? For example, the remote user can execute stored database procedure and function from a remote SQL interactive interface
आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट करते रहेंगे, वो रिमोटली आपकी स्क्रीन एक्सेस करके, डेटाबेस एक्सेस करके डिस्ट्रॉय कर देगा सब कुछ. दैट इज रिमोट कमांड्स. And performing privileges escalation. So this type of attack advantage of logical flaws within the database to upgrade the access level. Privileges it means rights. Suppose आप स्टूडेंट हो, आपको पता है फैकल्टी के पास कितने राइट्स है, एक्सेस है? नहीं ना. आप प्रमोट हो रहे हो, स्टूडेंट से फैकल्टी ज्वाइन हो रहे हो, और मैंने आपको 3 ही राइट्स दिए. आपको कैसे पता चला कि फैकल्टी के 5 राइट्स है? 2 तो मैंने ऐसे ही खा गए. समझ में आ रहा है? सो दैट इज परफॉर्मिंग प्रिविलेज एस्केलेशन. आपको ऐसा लगा कि मुझे सारे राइट्स मिल गए लेकिन 3 ही राइट्स है. वो तो मुझे पता है क्योंकि मैं हायर लेवल में, कि 5 राइट्स होते हैं, आपको 3 ही मिले. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द एसक्यूएल इंजेक्शन. थैंक यू. दिस इज द एंड ऑफ सिक्योरिटी यूनिट. If you have any query, any doubt, you may ask. In a security, this unit, important question. If we talk about in terms of mid or in terms of final exam or any point, any exam, access control is the highly important question. Sometimes they ask explain access control in a detail. Sometimes they may ask explain disciplinary and mandatory access control. Sometimes they ask role-based access control. Sometimes they may ask MCQ or 1-mark question. Next question may be encryption, authentication and authorization difference, integrity and security difference. In very rare case, they may ask SQL injection. What is SQL injection? In a rare case, right? So these all are the important. Very highly important question is the access control, right? It's 11:42. Now let's build the base of the next unit, that is our normalization without PPT. Yeah? So don't ask me, sir, it is not visible. Okay. नहीं अभी तो टाइम है क्या? 11:10 से 12:10. So we can start the next unit. Let's start. Just wait. मैं सोचा 12 बजे खत्म होता है. Now, next is the normalization, relational database design. Now, what is normalization? In that we are going to cover functional dependency, closure of FD, closure of attributes, extraneous attributes, canonical cover, finding the candidate key, decomposition, database anomalies, and different forms: 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, BCNF, and 5NF. This we are going to discuss. Now, first of all, what is normalization? In a general way, can you predict from the name what is normalization? Normalization हम किसको बोल सकते? हाँ गुजराती में तुक्का मारो. Perfect. Anything else? Why we require normalization? Yes, if we are having a complex database, then we cannot understand it easily. And to find something, if you want to search something, then it will be very complex. So write the database in such a manner you can understand, anyone can understand it easily. That is normalization, right? Suppose सारी चीज मैंने एक ही टेबल में डाल दी. फॉर एग्जाम्पल अपना ही ले लो प्रैक्टिकल 1 to 5 में ही, अकाउंट टेबल, डॉन टेबल, इंस्टॉलमेंट टेबल एंड
ट्रांजैक्शन टेबल, चारों टेबल की चारों कॉलम और सारा डेटा एक ही टेबल में डाल दिया TC2, देन व्हाट विल हैपन? कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं पूछूंगा कि आई वांट दिस डेटा, सर वेट 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने उसको क्या किया, उसको अच्छे मैनर में पर्टिकुलर टेबल में रिलेवेंट डेटा डाला कि अकाउंट टेबल में अकाउंट रिलेटेड डेटा, लोन टेबल में लोन रिलेटेड डेटा। जब आपको लोन का ही डेटा चाहिए तो आप डायरेक्टली लोन टेबल में ही जाएंगे। प्रीवियस वन में क्या, लोन का डेटा चाहिए, फिर भी वो पूरा टेबल एक्सेस करना पड़ेगा, सो एग्जीक्यूशन टाइम विल बी मोर, इंक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, स्पेस तो उतनी ही होगी ना, डेटा उतना ही स्टोर करना। हाँ, इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में टेबल्स विल बी, नंबर ऑफ टेबल्स विल बी इंक्रीज, लेकिन डेटा रिलेवेंट होगा और अप्रोप्रिएट प्लेस पे होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल एग्जांपल, थर्ड सेमेस्टर के GTU MU के सारे बच्चे को ग्राउंड पे बिठा लो, सारे टेबल एक जगह हो गए, सारे क्लासेस, नाउ एंजॉय। आप अपने फ्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, राइट? आपका फ्रेंड कौन से क्लास में है वो आपको पता है, फिर भी आप उसका लोकेशन ग्राउंड पे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके वजह हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग इट मींस टेबल, TC1 इधर, TC2 इधर, TC3 इधर, TC1 लाइक दिस। तो आपको पता है कि मेरा फ्रेंड TC1 में है, आप डायरेक्टली कहां पे जाएगा, TC1 का लेबल जहां पे वहां पे, और वहां पे जाके बोल देंगे रोल नंबर 22 इधर आ जा। समझ में आ रहा है? सो दैट विल बी इजी। हाँ, स्पेस तो उतनी चाहिए, लेकिन एक्सेस फास्टर हो गया आपका, तो नॉर्मलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस। आर यू गेटिंग, ऑल ऑफ यू? क्लियर? ऑनलाइन students, are you getting? If you have any query, any doubt, you may ask. ओके, कुछ डिपेंडेंसी भी होती है ना फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की। आप कई बार बोलते हो, सपोज आपका फ्रेंड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हो, उसमें आइडेंटिफाई करना है तो डिफिकल्ट है, लेकिन ग्रुप में बना दिया, क्लास वाइज खड़े रख दिए, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन उसमें डिपेंडेंसी होती है, आप बोलते ही हो क्या, आपको 4 फ्रेंड ढूंढने हैं, आप उसमें से किसको पहले ढूंढेंगे? आप किसको पहले सर्च करेंगे? जिसका okay, based on your characteristic. Next, roll number. I am expecting non-technical answer. Huh? जरूर प्रमाण, what is your need? Based on you will search. आपको चारों की जरूरत है, चारों को आइडेंटिफाई करना ही है, then how you will search? टेबल में भी रैंडम डेटा होता है ना, क्लास के ग्रुप बना है उसमें रैंडम डेटा है, 1 by 1, then it will take too much time. नेम वाइज से बेटर है रोल नंबर वाइज। उसमें एक तरीका मैं बताता हूं, आपको क्लास पता है और चारों फ्रेंड सेम क्लास में, सीक्वेंस में ही रोल नंबर है, तो रोल नंबर वाइज इजी पड़ेगा कि 1 2 3 4 पहले 4 आ जाओ, अगर वो सीक्वेंस में है तो। अगर नहीं है तो आप जल्दी बोलते हो, सपोज TC2 में एक, मैकेनिकल में एक, और दूसरी ब्रांच में या फिर कोई भी क्लास में, तो आप क्या करते हो, इसको ढूंढ लो, वो सब साथ में ही हो गए, दूसरा मिल जाएगा। विच वन इज द इजीएस्ट वे? सेकंड वन ना, आपको 4 को ढूंढना था, आप चारों को इंडिविजुअल ढूंढेंगे तो वो टाइम लेगा 10 मिनट। समझ में आ रहा है? बेस्ट एग्जांपल अभी का दे दूं, राइट नाउ इन ऑफलाइन क्लासेस ओनली 15 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मे बी
वेयर आर अदर्स? कॉलेज में तो मैंने देखे थे सारे, तो मैं एक तरकीब लगा रहा हूं, इंडिविजुअल सबको कॉल कर रहा हूं और सबको बुला रहा हूं। इट विल टेक टू मच टाइम, पूरा दिन भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी, एक को कॉल करूं, उसको बोलता हूं कि अनऑफिशियल ग्रुप है जो भी आपका, उसमें मैसेज डाल के अभी आना है, वो एक शॉर्टकट हो गया। दूसरे, चलो लेक पे जाते हैं, सब वहीं पे बैठे होंगे, सब वहीं पे मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है? सो टेक्निक आपके अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल जानी चाहिए, वो सही है, लेकिन विच वन इज दिस शॉर्टेस्ट पाथ, which one is which will use the less time, that will be preferable। हमें डेटा से मतलब है, जल्दी से मिल जाए वो एक पैरामीटर है, करेक्ट मिले वो भी एक पैरामीटर है। वो सब यूनिट फर्स्ट में देखा था, डेटा शुड बी करेक्टनेस, टाइमलीनेस। अगर नहीं याद है तो फर्स्ट यूनिट की पीपीटी ओपन कर लेना, ठीक है। अभी जो मैं बोला, कॉस्ट बोला और इजी वे, ठीक है, ये 3 वे मैंने बताए, उसमें से इजी वे कौन सा बताया आपने? एक को ढूंढ लो, बाकी के 4 मधुमक्खी की तरह वहीं पे उड़ते होंगे, समझ में आ रहा है? तो वो एक बेस्ट सॉल्यूशन हुआ। ये ट्रेलर हो गया नेक्स्ट यूनिट का, क्या बेस्ट सॉल्यूशन। इफ वी हैव 5 सॉल्यूशन, उसमें से बेस्ट कौन सा सॉल्यूशन है? दैट इज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड इवैल्यूएशन, दैट इज नेक्स्ट यूनिट। ये सब कंटिन्यूएशन में था, इसलिए दोनों का ट्रेलर मैंने बता दिया, राइट। Now functional dependency. Suppose we have one table: student, roll number, name, SPIN, backlog. Let R be a relation schema having n attributes like A1, A2, A3, AN. R is the relation, उसके अंदर इतने attributes है, A1, A2, A3, AN. Now let M and N be the subset of attributes of relation R. M is one subset and N is one another subset of R, right? Now before going to next point, functional dependency, it means functional dependency, it means it should be dependent on someone, right? किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, if you search someone, then automatically you will find rest of others, that is functional dependency, we can say that। इसको ढूंढ लो, बाकी के मिल जाए, राइट। सो मैथ्स में भी आप देखें, A tends to B, that is functional dependency। अगर A मिल गया तो B ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, like this। So if the value of M component of a tuple distinctly determine the values of N component, then there is a functional dependency from M to N। It means M को सर्च कर लो, खुद से N सर्च हो जाएगा। So M tends to N, this is the functional dependency, is it so? और उल्टा, N tends to M or M tends to N? M tends to N because yes, functional dependency from M to N, so we can denote it by this way: M tends to N. Which one is determined and which one is dependent? M is determinant and N is dependent, right? Good. Another example I have given, A tends to B. A is determinant who determines the value of B, that's why it's the determinant, and B is dependent on A। अगर A नहीं होगा तो B नहीं मिलेगा, that's why it's a functional dependency, remember this one। अगर B A नहीं है तो B नहीं मिलेगा, that's why arrow ही बता रहा है, arrow indicates itself। अगर A मिला तो B मिल जाएगा, A नहीं मिला तो B नहीं मिलेगा। For example, in above relation, there is one functional dependency we can generate roll number tends to name, SPI, backlog। अगर मैं रोल नंबर ढूंढ लूं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, राइट। उसका नेम मिल जाएगा, SPI मिल जाएगा, बैकलॉग मिल जाएगा। दूसरा लाइव एग्जांपल, आप सोचो डीबीएमएस में मैं आपको कितना लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। अटेंडेंस सीट आप देख रहे हो ना, सब लोग रोज देखते हो,
ठीक है, उस अटेंडेंस शीट में क्या होता है, मैं सपोज एक रोल नंबर ले लू 133, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एब्सेंट लेक्चर, डेट वाइज भी मिल जाएगा, सारा रिकॉर्ड उसका मिल जाएगा, उसका पेरेंट्स नंबर, उसका होम एड्रेस, एवरीथिंग आई विल गेट। सो रोल नंबर मुझे मिल गया तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो सिर्फ ले लो रोल नंबर। दूसरी चीज आपका जीआर नंबर, मैं अगर जीआर नंबर ले लूं तो सारी इंफॉर्मेशन मुझे डेटाबेस के टेबल में से मिल जाएगी। मैं उसको लास्ट में एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे मुझे सारी इंफॉर्मेशन हमारे पोर्टल में से मिल जाएगी, लाइव एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। ठीक है, अगर रोल नंबर नहीं होता तो नेम, एसपीआई, बैकलॉग मिलेगा, मिलेगा, लेकिन डिफिकल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और डुप्लीकेट भी होगा। और तो हमारे पास कितने नेम, समझ में आ रहा है? सो प्राइमरी की, दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी की। क्लियर? So here it can be also said n is functionally dependent on m or m functionally determined n। ये आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो m टेंड्स टू n का। रिमेंबर दिस वन, विदाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस वन यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ये मैथ्स में आपको पता है वो सही है, लेकिन यहाँ पे भी सीखना जरूरी है। सो हियर in any relation, if set of attributes are fully determined by other attribute, then the set of attributes are said to be functionally dependent on another attributes, that is a tends to b or m tends to n। clear? Let's see the example. Find the functional dependency. Can you find it? Yes, tell me which functional, yes, remember this one, more than one functional dependency may exist, right? बताओ one by one। account number tends to balance comma branch, that is one correct functional dependency। another, branch tends to ब्रांच से हमें उसका कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा। सो जनरली ए टेंड्स टू बी है ना, उसमें ए प्राइमरी की होगी मोस्ट ऑफ टाइम, एनी टाइप ऑफ की, प्राइमरी, सुपर की, फॉरेन की, और कैंडिडेट की, एनी टाइप ऑफ की, क्योंकि उससे हमें सारी चीज मिलती है। जैसे मैंने बताया ना, आपका रोल नंबर से मुझे सारी चीज मिलती है। अगर मैं आपका नेम ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपका रोल नंबर ले लूं तो सारी चीज मिल जाएगी। सो हु इज डिटरमाइनिंग who is determining whom? Based on that you can write the functional dependency। समझ में आ रहा है? m tends to n का मतलब क्या है? m से हमें n मिल रहा है। समझ में आ रहा है? m से हमें n मिल रहा है। n से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। if I am writing m tends to n and n tends to c, then n से हमें c मिलेगा। So directly we can say write this m tends to c। क्यों? क्योंकि m से हमें n मिलेगा, n से हमें c मिलेगा, राइट? सो ये पॉसिबल है। हाँ, आपकी गलत है। और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी? यस, यू कैन टेक any number of subset। first, if I write account number tends to customer name comma balance comma branch, this is first functional dependency, let's say, which identifies distinctly these tuples। इसके अंदर सारा आ गया। ए फंक्शनल डिपेंडेंसी में सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई, ऑल्दो आई एम डिक्लेयरिंग इट। मैं अभी आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, आप सोचो। account number tends to customer name, is it valid functional dependency? Yes. account number tends to balance, is it valid? account number tends to branch, is it valid? Yes. account number tends to customer name comma balance, valid? account number tends to balance comma branch, is it valid? account number tends to customer name comma branch, is it valid? account number tends to
एनी कॉम्बिनेशन, राइट? सब कुछ आ गया, इसलिए मैंने सुपर सेट लिख दिया, कस्टमर नेम कॉमा बैलेंस कॉमा ब्रांच। क्लियर? सो ऐसे फंक्शनल डिपेंडेंसी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, फर्स्ट वन इज द फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द नेम? फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए, एग्री? Explain me with this functional dependency. I am writing A tends to B. Now how you can explore this one? A tends to B है, उसमें fully functional dependency कैसे explain कर पाएंगे मुझे? It's very easy. A tends to B, functional dependency is given. Shortcut. Yes, what's your name? Rohit Mundra. Rohit Mundra said correctly. If B is fully dependent on A, then it is known as the full functional dependency. Can I say U? Can I say U as a fully functional dependency? मैं आपको full functional dependency बोल सकता हूं? Yes or no? Everyone, मैं आपको full functional dependency बोल सकता हूं? If yes, then why? Explain. ये तो बे पैरेलल हाल है. Yes, exact. You are totally depend on your father. That's why you are fully functional dependency. Right? दूसरा ही केस ले लो, पार्शियल डिपेंडेंसी. मतलब क्या हुआ? पहले ये देख लेते. चलो. In a relation, attribute B is fully functional dependent on A, then it is known as the full functional dependency. No proper subset. पूरा डिपेंडेंट हम A के ऊपर होना चाहिए, B का प्रॉपर सबसेट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, रिजल्ट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड सेमेस्टर. अब आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी ना जरूरी है, मुझे पता है आपके सारे क्वेश्चन. रिजल्ट हम सिर्फ एनरोलमेंट नंबर से ले सकते हैं ना, मिल जाएगा ना. 101 का रिजल्ट मिल जाएगा, 2 का मिल जाएगा, 3 का मिल जाएगा. नेम से मिलेगा रिजल्ट, डुप्लीकेट मिलेगा, इनकंसिस्टेंट मिलेगा. सेमेस्टर से मिलेगा नहीं. सो लास्ट 2 पैरामीटर एट्रीब्यूट्स है, हम नहीं कह सकते, लेकिन एनरोलमेंट से मिल सकता है ना. तो सर ये फुल्ली डिपेंडेंट कैसे हुआ? एनरोलमेंट नंबर विल बी यूनिक, ऑलवेज यूनिक. प्राइमरी की होगी, कोई भी सेमेस्टर ले लो, चाहे तू एब्सेंट था, मैंने एनरोलमेंट नंबर का पूरा एनालिसिस आपको बताया था. तो ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्यों हुआ? बिकॉज सोचने की बात ही नहीं है. सर आपने ही फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसे दी है. क्वेश्चन में क्या दिया है? एनरोलमेंट नंबर कॉमा नेम कॉमा सेमेस्टर टेंड्स टू रिजल्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस it is fully functional dependency. If I write name comma semester tends to result, then we cannot say. If I write enrollment number tends to result, then it may. समझ में रहे? सो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दी है आपको, एफडी क्या दिया है, वो देख के आंसर दो. सो डोंट आस्क such type of question for these or another, but obvious whatever FD is given to you, based on that you need to give the answer. समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा. समझ में आ रहा है? जैसे 10 लिखो, उल्टा कर दो 01, तो दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी. सिमिलर वे. So we need all 3 attributes to find the result, then and then it is known as the full functional dependency. Same example I am going to take in a partial dependency, so you will be very clear. Partial dependency, it means B is partially dependent on A.
if attribute B is partially dependent on A, in A tends to B, then it is known as the partial functional dependency. So B is functionally dependent on A as well as proper subset of A. Subset होगा तो भी partially, ठीक है? Example, same example I have given. Now explain me why it is partial dependence. Exact. Functional dependency is given enrollment number, comma name, comma semester tends to result. तो result किससे आपको मिलेगा? Only enrollment number से मिल जाएगा तो partial dependency होगी. अगर वो तीनों से मिल रहा है तो फुल्ली डिपेंडेंट. सेम एग्जांपल दोनों तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन वो कैसे कहां पे यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग. समझ में आ रहा है? सो वो आपको ध्यान रखना है. इफ वी रिमूव सम एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ए लाइक नेम एंड सेमेस्टर, ये दो आप रिमूव कर दो तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना. देन इट्स पार्शियल डिपेंडेंसी, राइट. अगर आप रिमूव कर दो नेम एंड सेमेस्टर और रिजल्ट आपको नहीं मिलता, देन इट इज फुल्ली डिपेंडेंट, क्योंकि तीनों एट्रीब्यूट्स चाहिए रिजल्ट के लिए. देन इट इज फुल डिपेंडेंसी, राइट. If for example we can find the result if we have only enrollment number, thus enrollment number tends to result is a partial dependency. ये आप लिख सकते हो as a FD, partial dependency लिख सकते हो. Clear everyone? Difference between functional full dependency and Hit Timur, you are absent for 2 days because I have not asked for the attendance. You have made this mistake twice and thrice before I just ignore you. So right now I am absenting you. You are not my boss to instruct me, sir, stop the lecture, right? I know what time is going on. Keep this thing in your mind. Do your work and be in your limit. Otherwise, you will be in trouble. Or disciplinary action I will take on you. Okay. Any query in full functional dependency and partial functional dependency? No? Then rest of two functional dependency we will discuss in the next lecture. Now everyone paste your enrollment number for the attendance into a chat. And thank you. Have a nice day.